topic, and that is, you can say, exceptions. Okay, so I'm going to cover the exceptions. So let me cover that. So for the Again, project class, when we are going to cover? I will cover, because that is not, you can say, related to that is not depend on any other topic. Okay, so we can, Okay. I will make sure, try to make the sequence so that things are related to each other. Okay. Right. Okay, so I'm covering exception handling. Exception, handling handling demo here. Okay, so recording is already there. So let me click on the main function, and now let me plus it's my humble request, please do assignments. Otherwise you will not learn it here. So here I'm going to, okay, so I'm going to write a code for you. Okay, and tell me if you're getting that point. So I'm writing a code SYSO, and I'm writing a print statement start program. Is it okay? Yes. So it is the first statement of the program, that is called start program. Then I'm going to write it int a equal to 2. Then I'm writing int b equal to 2. Then I'm writing int c equal to 0. But after that, I'm going to say c equal to a divided by b. Okay, and now I'm going to write a statement SYSO, you can say, and I can say end program. Okay, and in between I can do also one thing. I can do one thing also. Below this line, I'm going to write int d equal to a plus b. Okay. Okay, so here you can see what I'm trying to do. Here I'm doing one thing, or you can do one thing also. If you want to do one thing, don't write this code here. Let me write the same code here. Int c equal to a divided by b, int d equal to a plus b, and let me write int e equal to a minus b. So I think this program is clear to everybody what I'm trying to do. I have just written a statement start program. This is the first statement. Then I declare 2 variables, and you can see that I can give the input from the user. So if you want, let me take the input from the user also. So to make it a perfect program, so how we can take the input? Scanner, SCANR. So always I have given you the advice that whenever you are writing the code, try to write the small part of the class and then control space, so that when you make a control space, it will give you the import statement suggestion, and it will automatically do the same thing for you. Like this one, scanner, SCANNER, scanner equal to new scanner, SCANNER, and in the scanner we have to use the second constructor in which we have to pass the system.in. I told you. क्या किया था उसके स्कैनर के लिए? वो शॉर्टकट क्या था? नहीं, शॉर्टकट स्कैनर के लिए किसी भी क्लास के लिए एडवाइस देखो, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सपोज मेरी आपके आई हैव अ क्लास एरे डेमो नाम की क्लास है ना। तो देखो, अगर मैं एरे डेमो पूरा लिखूंगा, सो इट आफ्टर राइटिंग द एरे डेमो यू हैव टू इंपोर्ट इट। लेकिन अगर मैं एरे के बाद कंट्रोल स्पेस करूं, तो देखो आपको सजेशन देने लगता है ना, एरे डेमो नाम से क्लास ये दिख रही है जो मेरी खुद की है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो अपने आप इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे अपने आप आ जाता है। लेकिन अभी क्यों नहीं आया? बिकॉज दे आर ऑन द सेम पैकेज। अगर मैं कोई दूसरे पैकेज की क्लास लूं, देखो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ प्रदीप। अगर मैं प्रदीप का एग्जांपल लेता, आई एम राइटिंग PRA कंट्रोल स्पेस, अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो उसने नाम भी पूरा कर दिया और साथ में इट हैज एडेड द इंपोर्ट स्टेट। तो ये आसान हो जाता है। और अगर यही काम मैं ऐसे नहीं करता तो देखो काम थोड़ा लेंदी कैसे हो जाता है। इट विल वर्क। देखिए लेंदी कैसे होगा, आपने प्रदीप लिख दिया, क्या देगा? एरर देगा। आप कर्सर लाओगे, you put your cursor here, then you click on import. So same thing is going to be happen. That is more short. Is it okay? Yes. Okay. Yes. Chaliye, come to the point. I have taken the scanner class. Now I'm taking the first input, SCANNER scanner dot. I've told you that if you want to get the information that how in different ways how you can use the scanner class, you can watch that video that is described in very detail. Okay, so if you want, you can get it from here, there, from my YouTube channel. And now let me come to here. I have taken one input, I have taken another input. Okay, so when this program will run, what will happen? It will take 2 input from the user, and on the base of that, it is going to make a calculation first. A divided by B, A plus B, A minus B. Yes or no? Yes. So now as a simple programmer, you will simply say that what is the first statement? 30. Start. So it means
I can say that my program is running from line 1 to the end of this program. I can make sure if I'm able to see this line is printed and this line is printed. Yes or no? Yes. अगर मुझे ये दोनों लाइन प्रिंट होके दिख गई तो मैं समझ जाऊंगा कि बीच के लाइनें तो रन करी होंगी. And that is my expectation, right? My whole program should be executed. Okay, so let me run it and see what is going to happen. Start program is printing, then it is expecting some input. So let me write 4 and let me write 2. My program is running fine. Yes or no? Yes. Yes. देखो मैं कहीं प्रिंट नहीं कर रहा हूं. That is okay. I'm not printing the value of C, D, E. But it is running. मैं print नहीं कर रहा हूं, but the calculation is happening. Yes or no? Right. Yes. अब देखो next time I'm going to, और इस समय at the time of compilation, at the time of writing the code, I'm not getting any type of error. Let me run it again. And this time you will see something different. And what is that? First statement is printed. I have taken the first input 4, but second input I have taken 0. And just see what is going to be happen. My program is executed properly? No. No. And you can make sure that why it is not executed, why it is not, by how you can make sure that it is not executed properly, because you are able to see this line, but you are not able to see this line. Yes or no? Yes. और ये तो देखो, अगर कोई मुझसे कहता कि प्रदीप ये लाइन इसलिए नहीं प्रिंट हुई, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कहता इस इंडिविजुअल लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई. एक एसओपी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. यू हैव टू प्रिंट समथिंग ऑन योर कंसोल. सो मे बी some problem is in this line, some problem is this line, but this statement is individual alone without any problem. Yes or no? Yes. Yes. तो जावा में माना जाता है, नॉट इन जावा, इन एवरी रियल लाइफ आल्सो, कि हमसे माना जाता है whenever I'm giving some instructions, तो मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो. अगर किसी इंस्ट्रक्शन में फॉलो यू आर नॉट एबल टू फॉलो, मे बी सम रीजन, देयर आर सम एरर दैट, तो एक्चुअली उसकी वजह से किसी दूसरे को इंपैक्ट नहीं होना चाहिए. समझ में आया? और आपका काम नहीं रुकना चाहिए. यस और नो? Yes. तो देखो मैं बताता हूं what was the problem and why it is not a good thing. Actually what is happening, when I have given the input of A equal to 4 and given the input of B equal to 0, and when the calculation come to this part, line number 19, it has make a calculation 4 divided by 0. And in Java, whenever you try to divide a number by 0, it is actually a abnormal condition and we call it arithmetic exception. हम क्या बोलते हैं? इसको arithmetic exception. अब देखो चलो एक बात बताओ मुझे, मैं मानता हूं कि इस नंबर को बी मैंने इनपुट दिया जिसकी वजह से ये नहीं चला, लेकिन क्या इसकी वजह से इसको रुकना चाहिए? इसको तो चलना चाहिए था. यस और नो? हाँ जी. Yes. भाई अगर मैंने इनपुट, आई हैव गिवन द इनपुट 4 और 0, अरे तो सम तो कर देते. सम में क्या प्रॉब्लम थी? 4 + 0 4 कर देते. ई में 4 - 0 4 कर देते. लेकिन इस लाइन की वजह से क्या हुआ? माय प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड एट द सेम पॉइंट एंड इट हैज जस्ट एग्जिट फ्रॉम द एग्जीक्यूशन. समझ में आया? Yes, Pradeep. So whenever your program is running and in between it has not completed the execution and terminated, this situation is called exception. What we call it? Exception. तो सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेप्शन, कि भाई मेरे प्रोग्राम में बीच में एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन आई जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम वहां से टर्मिनेट हो गया और वो आगे चला ही नहीं. उसने देखा ही नहीं कि भाई आगे की इसकी प्रॉब्लम से आगे प्रॉब्लम का कोई रिलेशन था भी कि नहीं था. यस और नो? So this is called exception. And we are going to learn it, how we should handle it, so that my expectation that rest of the program should be executed properly. That is called exception. What do we call it? Exception. Handling. हाँ बोलते रहा करो, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. अब देखो एक यहाँ पे खासियत है. एट द टाइम ऑफ माई रनिंग द कोड, एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग द कोड और राइटिंग द कोड, माई कंपाइलर हैज नॉट गिवन एनी इंटीमेशन. मेरे कंपाइलर ने तो नहीं बोला ना कि भाई अगर आप इस समय नंबर कहीं 0 दे दिया आपने तो एरर आ जाएगी. मेरे कंपाइलर ने नहीं बोला, वो तो रन टाइम पे पता चला. यस और नो? Yes. So that's why we call it, whenever you are getting any exception, whenever you are not getting any exception at compile time, but whenever you are running the program, you are getting the exception. This type of exception is known as a runtime exception. क्या बोलते हैं? Runtime exception. And it is also known as second thing that is called, we can also say it, it is also called unchecked exception. क्या कहते हैं? Unchecked exception. अब अनचेक क्यों बोलते हैं? ऑलवेज ट्राई टू, वी कॉल इट अनचेक इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपाइलर, कि मेरा कंपाइलर इसको पकड़ नहीं पाया ना, उसको कंपाइलर ने तो पकड़ा ही नहीं कि रन टाइम पे ऐसा हो सकता है ना उसको. तो दैट्स व्हाई हमको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अनचेक्ड एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन. इज इट ओके? Yes. चलिए अब मैंने आपको, आप बोलोगे प्रदीप आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि क्या कंपाइल टाइम पे भी कोई पकड़ सकता है? सो लेट मी टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ अनदर क्लास. यू कैन से एक्सेप्शन EXCEPTION exception demo 2. And here I'm going to write a program for you.
So let me create main function and let me finish. Just see, I'm going to write a program, and this time I'm going to write a program. And let me take the example. I'm writing a program to read a file. Okay, so I have not given you the I have not given you the idea to read a file, but you can trust on me. In Java, whenever you want to read a file, you have to write a code. First of all, you have to create a file object. क्या करना है आपको? पहले फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना हो. कैसे बनाते हैं? फाइल इक्वल टू न्यू फाइल. Is it okay? Yes. So this is the code you can trust on me, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, but you can understand, simply understand. Whenever you want to read any type of file in Java, you have to convert the file into the file object. Java में वैसे ही होता है जैसे अमिताभ बच्चन की नमक हलाल मूवी थी, something like that. English is a funny language. We can talk English, we can walk English, we can do everything with the language. Same thing Java says that in Java everything is treated as a object. Everything is treated as a object. इसमें कोई error भी आती है ना, तो जो error आ रही है, I will show you this error which is appearing in your program, that is also a object. वो भी किसी क्लास का क्या है? ऑब्जेक्ट है. वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है. समझ में आ रहा है? Yes. चलिए वो अभी आपको दिखाऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. तो हम करते हैं. यू कैन ट्रस्ट ऑन मी. आई एम गोइंग टू रीड अ फाइल दैट इज अवेलेबल ऑन माय डेस्कटॉप. मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूं बोलने में. No. That's No, fine. great. Sometime I've got the reviews. Pradeep, you are very fast. So let me create a file with the name of Nippon. So Nippon, nippon.txt. This file is available on my desktop. Yes or no? This file is available on my desktop. Yes. Yes. So let me do one thing. I will try to read it. I know that this is file available. So let me copy this path. Let me go to here and let me give the path here, this one, and the rest of I have to do. What was the name of the file? Nippon.txt. So safer side, let me copy the path, rename, and copy the whole path, this one, txt. So what this line is going to do, it will go when this line is going to be executed. It will go to this particular location and will check this file is exist or not. If this file will exist, it will convert into the file object and will store the reference in my file variable. Clear है? Yes. तो ये क्या करेगा? जब भी इसको फाइल ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पे फाइल के पास जाएगा और वहां पे चेक करेगा इस नाम से इस जगह पे कोई फाइल मिलेगी. उसे फाइल मिलते ही उसको फाइल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा. और अगर फाइल नहीं मिली तो क्या करेगा? उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा. तो फाइल रेफरेंस वैल्यू क्या हो जाएगी? नल. नल मींस नथिंग. इज इट ओके? Yes. ठीक है. तो ये इस जगह पे जाएगा. इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द फाइल ऑब्जेक्ट. अगर मिल गया तो इट विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट बना देगा और उसकी वैल्यू, उसका जो एड्रेस है, द एड्रेस इट इज गोइंग टू रिफर बाय फाइल. अगर नहीं बना पाया तो ऑब्जेक्ट तो नहीं बना पाएगा. तो फाइल जब एड्रेस नहीं बना पाएगा, फाइल किसको पॉइंट करेगा? नथिंग. नथिंग मींस नल. जावा में नथिंग मींस नल. चलिए अब इसको करते हैं. वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ फाइल. नाउ वी आर, आई एम नॉट गेटिंग एनी एरर हियर, एनी एक्सेप्शन हियर. नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेकंड स्टेप to read a file. If you want to read any file, whichever you have created with the help of file object, you have to use a class that is called file input stream. और इसके अंदर करना क्या पड़ता है? जो भी आपने फाइल ऑब्जेक्ट पास किया है, you have to pass that file object into this input stream class. तो ये आपकी फाइल के ऑब्जेक्ट को रीड वाले मोड में, रीड वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देती है. Are you getting my point? Yes. अब मैं आपको बताता हूँ. You can trust on me. आप मुझसे यकीन करो, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं कि जो दोनों लाइनें लिखी हैं, आई हैव रिटन द बोथ लाइन, द परफेक्ट कोड टू रीड अ फाइल. ठीक है. लेकिन स्टिल आई एम गेटिंग द एक्सेप्शन हियर. यहां पे एरर नहीं आ रही है. आई विल पुट द कर्सर हियर एंड यू विल सी इट इज गिविंग मी एक्सेप्शन. क्या एक्सेप्शन दे रही है? Add throws declaration. नो, दैट इज द सॉल्यूशन. फर्स्ट File लाइन इज not found. exception. अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड. अब देखो यहाँ पे ये आपका दूसरा फ्लेवर है. यहाँ पे आप कोड लिख रहे हो. व्हेनेवर यू आर राइटिंग द कोड, योर कंपाइलर इज नॉट इंटीमेटिंग कि ऐसी प्रॉब्लम रन टाइम पे आ सकती है. कोई नहीं बता रहा था ना, लेकिन आ गई तो आ गई. लेकिन here the second scenario is that where your compiler is able to identify that this type of problem can come into the future or at runtime. देखो ये फाइल, ये आपसे क्या बोल रहा है? फाइल नॉट फाउंड. लेकिन फाइल नॉट फाउंड इसको थोड़ा पता है. फाइल तो हो भी सकती है जब प्रोग्राम चलाओ और नहीं भी हो सकती है. यस और नो? Yes. लेकिन आपके कंपाइलर ने क्या किया? आपको पहले से इंटीमेशन दे दिया. दे हैव गिवन द इंटीमेशन, भैया व्हेन फाइल इज नॉट गोइंग टू बी, यू कैन से आई विल नॉट एबल टू गेट द फाइल एट दैट लोकेशन, तो मैं आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करने वाला हूं, फाइल नॉट फाउंड. समझ में आया? तो आपका कंपाइलर इज इंटीमेटिंग, आपको कंपाइल करते हुए इंटीमेट कर रहा है कि टेक अ प्रिकॉशन फॉर दैट, टेक अ प्रिकॉशन फॉर दैट. मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हो सकता है, तो आप पहले से उसके लिए क्या करो? यू मेक अ प्रिकॉशन फॉर दैट. एंड व्हाट इज द प्रिकॉशन मींस? सॉल्यूशन 2,
add throws and surround with try catch. क्या दे रहा है? add throws and surround with try catch. add throws का मतलब होता है कंपाइलर आपको बता रहा है कि प्रॉब्लम आएगी और आप उसे इग्नोर कर रहे हो. जस्ट यूज फर्स्ट वन. तो देखो क्या होगा. You are able to see one thing is added in the declaration of your function. Yes or no? Yes. तो देखो यहाँ पे ऑलवेज आई ट्राई टू गिव द बेस्ट एग्जांपल. यहाँ पे अगर इसको समझना है तो हमेशा इसके लिए एग्जांपल लो एक बहुत अच्छे उसका. एंड दैट इज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टू बॉयज. वन बॉय इज यू कैन से हैव पेरेंट्स, मदर फादर, एवरीबॉडी इज लिविंग विद हिम. तो वो एक बच्चा ऐसा. और सेकंड है वो दैट इज ऑर्फन, एक है बेचारा अनाथ है. सो व्हाई आई एम गिविंग दीस टू एग्जांपल, यू विल नेवर फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट. तो देखो पहला एग्जांपल लेता हूं. इफ द पर्सन हैव द पेरेंट्स एंड यू कैन से the boy, the whatever, I'm taking the example of the boy, he is just going outside the house. तो जब भी वो जा रहा है, he is going outside and just taking the bike. तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हमेशा बोलते हैं ना बेटा हेलमेट ले लो, हेलमेट ले लो. यस और नो? Yes. तो आपके बच्चे जरूर बोलते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉयज एंड गर्ल्स की उनके पेरेंट्स का काम ही है बेटा बाहर जा रहे हो टेक द हेलमेट. और इसका मतलब ये नहीं होता आपका कि आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी. दे कैन मेक ए डाउट कि भाई देखो बाहर जा रहे हो, इट कैन बी हैपन. तो आप अगर हेलमेट ले लोगे, इफ समथिंग इज रॉन्ग यू विल बी सेफ, राइट? सो वो आपको बार बार इंटीमेट करते हैं. एंड दैट इज द सिचुएशन व्हेन दिस वन इज हैपनिंग. लाइक इन योर एग्जांपल क्या हो रहा है? यू आर राइटिंग द प्रोग्राम. यस और नो? आपने प्रोग्राम रन तो नहीं किया अभी? आपने रन किया? यस और नो? No. You are just compiling the program, but your compiler is just like your parent intimating you, bhaiya file nahi milegi, what is going to be happen. So this type of exception where compiler is able to identify the problem which can come at runtime, we call it, first of all we call it checked exception. क्या बोलते हैं इसको? Checked exception. मतलब कंपाइलर जिसको कंपाइल टाइम पे चेक कर पा रहे हैं. एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट कंपाइल टाइम एक्सेप्शन. ठीक है? क्योंकि कब पकड़ ली जाती है? During compilation. Yes. तो आपके कंपाइल टाइम पे भी जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की तरह ये एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे पकड़ ली जाती है. इसीलिए इसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं. एंड वी कॉल इट चेक्ड. चेक्ड मैंने क्यों बोला? किसके? क्योंकि कंपाइल का मतलब जो कंपाइलर चेक कर लेता है कंपाइल टाइम, इसीलिए इसको चेक बोलते हैं. एंड सेकंड इज दैट जो कंपाइल टाइम पे चेक नहीं हो पाती उन्हीं को बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन. और चूंकि दैट इज गोइंग टू बी मेक द इंपैक्ट एट रन टाइम, और इसी को क्या बोल देते हैं? रन टाइम. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. क्लियर है? Yes. अब देखो इन केस ऑफ चेक्ड एक्सेप्शन, जब वो चेक होती है तो जस्ट लाइक योर पेरेंट वो आपको रोक रहा है. यहाँ पे कह रहा है देखो आपको सलाह दे रहा है. जैसे आप गेट से बाहर निकले हो, जस्ट गोइंग आउटसाइड द योर गेट, आपका पेरेंट बोला है ओ ओ ओ प्लीज टेक द अम्ब्रेला. दो सोल्यूशन दे रहा है आपको, रोक रहा है कि अम्ब्रेला ले लो, सोल्यूशन ले लो. ओ सॉरी, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रेनिंग. टेक द हेलमेट, हेलमेट ले लो, इट कैन बी सेफ फॉर यू. तो आपके पास दो सोल्यूशन है. क्या आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो कहेंगे पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, जस्ट इग्नोर इट. पापा ने बोला, वी जस्ट इग्नोर इट. एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सोल्यूशन. एड थ्रोज. एड थ्रोज मींस यू आर इग्नोरिंग. अगर मैंने पहला कर दिया तो मेरा क्या है? केस क्या बन गया? इग्नोर. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी. Yes. So your compiler is intimating about a future problem. लेकिन आप बहुत इंटेलिजेंट हो. I'm just making a fun. आपने बोला अरे छोड़ो. तो आपके प्रोग्राम ने क्या किया? आपको ये यहाँ लिख दिया कि भाई इसने जानबूझ से मुझसे बोला है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आए इग्नोर कर दो. इग्नोर करने का मतलब मैं आपकी इंटीमेशन को नहीं मान रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा. इन दैट केस यू आर एबल टू रन द प्रोग्राम. आप प्रोग्राम तो भी तो चला दोगे लेकिन प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई. अगर फाइल नहीं मिली तो एक्सेप्शन आ जाएगी. लेट मी रन इट. देखो पहले फाइल इज देयर. यस और नो? Yes. File is available on my desktop and you can see. Are you able to see both the statement start and end? Yes. अब इमेजिन करो ये फाइल यहां पे नहीं हुई. आपका कोई दुश्मन है जिसने आपके ऑटोमेशन से फाइल को उड़ा दिया. ये देखो डिलीट. कोड वही है, चल रहा है. इस समय क्या होगा? लेट मी शो यू दैट थिंग. व्हाट इज हैपनिंग? यू आर एबल टू एग्जीक्यूट द होल प्रोग्राम? No. नो. क्योंकि आपने क्या किया? आपका कंपाइलर ने आपकी पूरी मदद की रही कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन कम, लेकिन आपने कोई सोल्यूशन लिया नहीं. तो उसने भी कहा ठीक है आप थ्रोज कर दो, इग्नोर कर दो, आप मेरी बात को नहीं मान रहे हो तो आप इग्नोर इट. सो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन इज गिविंग यू द ऑप्शन टू टेक अ solution for that in the future, but you are not taking, that is your option. तो पहला solution था कि आप उसकी बात को इग्नोर कर दो. तो हम क्या करते? throws. throws मतलब ignore it. अगर मैं solution नहीं लेता, so what is the second solution? Just put your cursor, that is called surround with try catch. surround with try catch मतलब पापा की बात मान ली और मैंने एक solution बनाया. क्या? whatever line can create a problem, I put in a block that is called try. जिस लाइन में भी प्रॉब्लम आएगी उसको किस में रख दिया? ट्राई ब्लॉक पे. वी कॉल इट ट्राई ब्लॉक. ट्राई का करली ब्रैकेट. इज इट ओके? Yes.
and by default it gives you another block that is called catch. तो कैच का बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कैच? जावा कहता है अगर आपके जिस लाइन में प्रॉब्लम आई है, अगर आपने इसको ट्राई में डाल दिया तो मैं आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करूंगा, मैं आपके प्रोग्राम का कंट्रोल ले जाऊंगा कैच ब्लॉक में। आई विल टेक योर कंट्रोल टू द कैच ब्लॉक, और उसके बाद बाकी सारे प्रोग्राम को मैं ऐसे ही चलाऊंगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? Yes. So now actually you can say catch is the place where Java is giving you the place to give the solution for that. Whatever solution, whatever precaution you want to make sure, you can put it here. अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक मैसेज डाल दो और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा लो, yes or no. तो देखो, अगर मैं इसमें कुछ भी ना करूं, लेकिन चूंकि कैच में आने का फायदा ये है कि कैच में आने के बाद वो समझ जाता है कि मुझे आगे प्रोग्राम का यहाँ पे जो भी इसने करना था कर दिया, आगे ही प्रोग्राम को मत रोको, टर्मिनेट मत करो। सो लेट मी शो यू द सिंपल थिंग हियर। SYSO, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उनके जगह गंदे स्टेटमेंट की जगह अपना अच्छा, फाइल नहीं मिली मत घबराओ, आगे बढ़ो। आई एम जस्ट मेकिंग अ फन हियर, बट यू कैन राइट एनीथिंग हियर। इज इट ओके? Yes. Yes. आप Yes. कुछ भी कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग अ सॉल्यूशन कि आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई बिजनेस लॉजिक लिख सकते थे, व्हाटएवर, एट रन टाइम इफ नीडेड आप रन टाइम पे एक नई फाइल भी बना सकते थे। अगर आपको लगता है दिस फाइल इज, इफ द फाइल इज एग्जिस्ट दैट इज ओके, इफ फाइल डू नॉट एग्जिस्ट एट रन टाइम वी कैन क्रिएट द फाइल। तो मैं आपको वही बता दूंगा कि फाइल कैसे बनाते हैं, बट माय पर्पस इज टू टेल यू द थिंग इज दैट व्हाट इज चेक्ड एक्सेप्शन। whenever you are getting an exception at compile time, means your compiler is interrupting you that this type of problem can come at run time, so he is giving you two options. You can ignore it. आप उसको बोलता है, आप बोल दो कि वो कह रहा है आप मुझे बता दो कि आपको कोई परवाह नहीं है, तो आप इग्नोर कर दो, मैं अपने स्टेटमेंट के यहाँ पे थ्रोज लगा दूंगा और समझ जाऊंगा कि आपको मैंने बताया था, आप ही ने इंटरेस्ट नहीं लिया। सेकंड थिंग इज दैट इफ यू आर टेकिंग द इंटरेस्ट, यू आर गोइंग टू टेक द ऑप्शन सराउंड विद ट्राई कैच। तो सराउंड विद ट्राई कैच में क्या करता है, वो अपने हाथ आपकी प्रॉब्लम वाली लाइन जिससे प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज गोइंग टू बी रैप्ड इन ट्राई ब्लॉक, एंड सॉल्यूशन के लिए वो आपको क्या देगा, कैच ब्लॉक। अब देखो, प्रोग्राम को रन करूंगा, फाइल नहीं है तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा आगे लास्ट तक। Yes or no? Yes. तो आपका इसकी वजह से प्रोग्राम नहीं होना चाहिए डिस्टर्ब, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब देखो, अब ये लाइन कब कंट्रोल जाएगा, जब इस लाइन में होगी प्रॉब्लम, अदरवाइज कभी भी कंट्रोल कैच में नहीं जाएगा। कैच में कब जाएगा, व्हेन इट इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो देखो कैसे करता हूं, लेट मी गो टू द डेस्कटॉप, इसी प्रोग्राम में कंट्रोल जेट करता हूं, निपुण की फाइल आ गई। Yes. अब मेरी फाइल में ये कोड तो पहले से लिखा हुआ है, इस टाइम व्हेनेवर माय कंट्रोल गो टू द ट्राई, तो इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऑब्जेक्ट तो मिल गया, तो कैच में कंट्रोल नहीं जाएगा, वो सीधा कहां चला जाएगा, नेक्स्ट। इज इट ओके? तो ये लाइन मेरी आपको प्रिंट होते नहीं दिखे देगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Yes. हाँ जी, बढ़िया मास। Yes. सो दिस इज द थिंग, नाउ दिस इज द टॉपिक, वट एवर यू वांट टू डू इट। कैच में आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपका मन करे कर दो, ठीक है। देखो, अगर इफ यू वांट टू सी, हम ये भी कर सकते थे, अगर नहीं मिली मुझे लगता है तो देखो, आई कैन डू वन थिंग, मैं दिखाता हूं आपको जस्ट फॉर फन, ये मैं फन के लिए कर रहा, ताकि आप लोग वीकेंड में बैठे हो, थोड़ा इंटरेस्ट आए। यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट न्यू फाइल, क्या लिखा है, Create new. तो देखो आपको इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, ऐसा फन के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं, कि अगर मैं एक कोड लिख दूं तो अगर ये फाइल नहीं मिलेगी तो रन टाइम पे क्या बना देगा, एक फाइल बना देगा। लेकिन इसमें भी देखो यहाँ पे क्या फाइल है, इसमें क्या एक्सेप्शन है, फिर से ये भी आ गई। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप फाइल बनाओगे देन आई हैव ए प्रॉब्लम। क्यों बता रहा है मैं बताऊं, आप अपने सिस्टम पे फाइल बनाते हो, आपको पता है यू दैट इज द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि आप अपनी किसी फोल्डर को लॉक कर सकते हो जिसके अंदर फोल्डर में फाइल ना बना पाओ। यस और नो? Yes. जावा में वी कॉल इट आईओ एक्सेप्शन। आईओ का मतलब जानते क्या होता है, इनपुट आउटपुट। आप किसी फाइल से इनपुट लो, किसी फाइल को आउटपुट, दैट इज कॉल्ड आईओ। तो आपको एक डाउट दे रहा है कि अगर मैं ऐसा करता हूं और अगर उस फाइल में ऐसा राइट हुआ तो क्या करोगे, समझ में आया? Yes. हाँ जी, अरे हाँ नहीं तो बोलो, हाँ क्या? ठीक है। सो दैट इज सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट पार्ट, मैं आपको कोड दे दूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, whenever you are writing the code and your exception, your Java is intimating at the compile time, that is called checked exception, ठीक है। तो यहाँ पे एक फायदा क्या होता है, your compiler is intimating you कि भाई ऐसा करो। अब बातें भाई साहब पहले वाले पे, let me come to the first point. Here you can say, here this example is best example for the orphan. अच्छा, कोई बेचारा अनाथ बच्चा है, वो घर से बाहर निकलेगा, कोई रोकने वाला है नहीं, कोई रोकने वाला ही नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बेचारा बाइक में जा रहा है, हेलमेट नहीं ले जा रहा है, कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो हो गई। अब वो क्या करेगा, वो एक काम कर सकता है, लेकिन उसने अपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस लिया है उसका इस्तेमाल वो कर सकता है करंट में। जब वो घर से बाहर निकल, अरे यार पिछली बार मैं गया था मुझे चोट लग गई, इट मींस दिस टाइम व्हेनेवर ही इज just trying to think to get
टू गो आउटसाइड द हाउस, तो उसके दिमाग में तुरंत आएगा यार ऐसी प्रॉब्लम आई थी, शुड आई टेक द हेलमेट, यस और नो? Yes. तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ देखा जाए तो चेक रिसेप्शन जो होती है उसके पास पेरेंट्स होते हैं, वो आपको खुद ही इंटीमेट करेंगे, लेकिन जो बेचारा ऑर्फन होता है उसको खुद को ध्यान रखना पड़ता है। सो व्हाई एम टेकिंग द एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल से लिया क्लास कि भाई देखो जब इनपुट तो ले ही रहे, जरूर यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है अगर किसी ने इनपुट क्या दे दिया रन टाइम पे, 0। तो यहाँ पे सोल्यूशन मैं करूंगा क्या, खुद ट्राई बनाऊंगा, आई विल मेक माई ओन ट्राई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. Yes. खुद ट्राई बनाऊंगा, खुद कैच बनाऊंगा, एंड आई विल ट्राई टू मेक द सोल्यूशन। कोई मुझे बताने वाला नहीं है, आई एम जस्ट टेकिंग द सोल्यूशन कि मुझे करना पड़ेगा ऐसे, मुझे खुद अपनी रखवाली करनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड ट्राई कैच। अब ये भी वैसे ही काम करेगा, बट द बेनिफिट इज दैट कंपाइलर हैज नॉट इंटीमेटेड यू, कंपाइलर नॉट कंपेल्ड यू टू टेक एनी डिसीजन, आपने खुद किया। अब देखो यहाँ पे भी प्रोग्राम चल जाएगा, मैं आपको इनपुट दूंगा, लेट मी राइट इट हियर SYSO, और लिखूंगा एक्सेप्शन के केस में लिखूंगा सॉरी B is 0, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ कब आएगी, जब B is 0। सो अब प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट मी टेक बोथ द सिनेरियोस हियर, सो लेट मी रन इट एंड लेट मी गिव द इनपुट लाइक 4 एंड देन 2। क्या मेरा ये प्रिंट हुआ B is 0? No. क्यों? नहीं। When the control go to the try, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, A को डिवाइड किया B से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कैश में गया नहीं, कंट्रोल आगे बढ़ गया, सारा काम हो गया। Now let me go to the second scenario. At run time, I have given the input, like you can say I've given 4 and I've given 0. Now this time problem creates. So control go to the catch block. तो कैच ब्लॉक का सिर्फ एक का काम है, वो आपसे कहता है कैच ब्लॉक मिलने से फायदा है, योर रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Yes. तो ये इसका पर्पस होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन द एक्सेप्शन, कि क्या ऐसा हो सकता है इन माय सिंगल प्रोग्राम वी कैन हैव मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम? डेफिनेटली a program can have 1000 line of code, maybe 2 lakhs line of code, so we can get these type of situations frequently in my code, yes or no? तो ऐसा होता है whenever you are getting, so you can take the example, maybe we are writing these two code together in the same file, yes or no? ऐसा भी तो हो सकता है, ये काम मैं दोनों एक ही जगह पे कर रहा हूं, एक ही के अंदर हो सकता है, yes or no? भाई एक प्रोग्राम के अंदर भी मैं मल्टीपल कोडिंग कर सकता हूँ ना, आई डोंट नो, आई हैव टू टेक द इनपुट और ये करना हो, बहुत सारे काम करने हो, यस और नो? Yes. Yes. तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो आपके पास यू हैव सो मेनी सॉल्यूशंस आर दैट। सो लेट मी गो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे करते हैं। सपोज टेक द एग्जांपल, दिस टू प्रोग्राम्स आर रिटन टुगेदर। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर दिस प्रोग्राम इज रिटन हियर, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो डेफिनेटली द फर्स्ट नॉर्मल सॉल्यूशन इज दैट if you are getting the problem at this line of code, you have created a separate try catch, right? And here you are getting the problem at this line, you have created a separate try catch. Is it okay? हाँ जी, क्लियर है? Yes. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इफ यू कैन मैनेज इट, अगर आपको लगता है मैनेज कर सकते हो, तो देयर इज अ ऑप्शन दैट इज कॉल्ड सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल कैच। अगर आप ऐसा कर सकते हो, कैसे? That is not a good practice, मैं उसे अच्छी practice नहीं मानता हूँ, but because it is asked in the interview that is there any concept where we can use one try and multiple catch? Yes. तो क्या होता है, देखो सारी प्रॉब्लम जो आपकी एक साथ आनी है उनको मैंने एक जगह रख दिया। कहाँ पे रख दिया? देखो, if I'm going to write this code here, suppose मुझे कोड में यहाँ लिख सकता था, यहाँ पे भी, तो मैंने इनपुट तो ले लिया, प्रॉब्लम मेरी इस लाइन में आनी थी, yes or no? Yes. एक तो इस लाइन में आनी थी, इसको भी यही लिख दिया, इसको भी, तो दोनों लाइन, both the lines I've written in my one try. Is it okay? Yes. और यहाँ पे एक कैच तो इसके लिए बना था, इसके लिए कैच, एक कैच और बना सकते हैं, तो वी कैन राइट वी कैन राइट मल्टीपल कैच आल्सो। लेकिन हर बात ध्यान रखना, whenever you are creating a catch here, for every type of problem we have different type of exception। तो यहाँ पे जब इसमें प्रॉब्लम आएगी तो एक्सेप्शन का नाम क्या है? फाइल नॉट फाउंड। क्या नाम है? फाइल नॉट फाउंड। एंड व्हेन दिस लाइन विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, द नेम ऑफ द एक्सेप्शन इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्या नाम था? Arithmetic. So every type of, if you are going to write try and catch multiple, तो आपको you have to make sure कि हर टाइप की एक्सेप्शन आपको पता हो, because reason is that, मैं अभी आपको बताता हूँ रीजन क्या है। Reason is that whenever you are writing a single try and multiple catch here, in that case what is going to be happen and how the control is going to be executed। क्या होता है, if control will come to here and it creates a problem, suppose a problem आई, तो control कहाँ पे जाएगा? Yes or no? हाँ जी। Yes. तो कंट्रोल यहीं पे क्यों जाएगा, कंट्रोल यहां पे क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज आई टोल्ड यू
whenever this line creates a problem, it creates a exception. जो exception होती है वो किसी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में होती है? It is in the form of object. और object किसका बनता है? क्लास का. ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का. तो जैसे ही आपके एरर, लेट मी शो यू दिस थिंग वेरी इन ए पेंट ब्रश, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना. योर कंट्रोल कम टू दिस लाइन. इज इट ओके? कहां पे आया कंट्रोल? इस लाइन पे. 21. जब यहाँ पे कंट्रोल आया तो आपके यहाँ पे सपोज टेक द एग्जांपल, फाइल नहीं मिली, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, एक्सेप्शन. वो एक्सेप्शन बनती क्या है, एक्सेप्शन होती क्या है? दैट इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब वो एक्सेप्शन को दिखाने के लिए भी क्या बनाता है? एक ऑब्जेक्ट बनाता है. क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसका होता है? ऑब्जेक्ट किसी क्लास का ही होगा ना, यस और नो? Yes. तो वो जिस तरह की एक्सेप्शन आती है उस तरह का ऑब्जेक्ट बनाता है. अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये एक्सेप्शन के लिए ढूंढता है कि मुझे किस कैच में जाना है. तो ये जो ऑब्जेक्ट का टाइप होता है ये मैच करता है मैं किस टाइप की एक्सेप्शन हूं. अगर इस ऑब्जेक्ट का टाइप फाइल नॉट फाउंड होगा, सो वेयर द कंट्रोल विल गो? इसमें. अगर इस ऑब्जेक्ट का टाइप हुआ अरिथमेटिक, तो कंट्रोल कहां जाएगा? B. समझ में आ रहा है? Yes. तो ये ऑब्जेक्ट जो एक्सेप्शन होती है, यहाँ पे पीपल आर सम टाइम कंफ्यूज कि प्रदीप ये ऐसा फाइल नॉट फाउंड क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं? द रीजन इज दैट whenever this problem is going to be created, आप ऐसे समझो ये प्रॉब्लम बनती है तो जावा इसको अंदर एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है कि भाई उसको समझ में आता है कि फाइल नॉट फाउंड क्या का मतलब एक फाइल नॉट फाउंड का ऑब्जेक्ट बना देता है. ये ऑब्जेक्ट अपने आप जिस ब्लॉक से मैच कर जाएगा कैच में, कंट्रोल कहां चला जाएगा? वहां पे चला है. इज इट ओके? हाँ जी. Yes. Yes. नाउ लास्ट थिंग इज दैट इन दिस हायरार्की अगर किसी के पास भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो क्या हम कॉमन बना सकते हैं? जस्ट लाइक अ डिफॉल्ट. जैसे होता है ना इफ में, इफ एल्स इफ और लास्ट में डिफॉल्ट. मतलब अगर मुझे नहीं पता है उसका एक्सेप्शन क्या है, दैट इज नॉट ए गुड थिंग. लेकिन आपने सेफर साइड क्या कर देना, लिख सकते हो कैच, और ऐसी एक्सेप्शन को बोलते हैं सिंपल, लिख दो एक्सेप्शन. इट मीन्स दिस इज द पेरेंट ऑफ ऑल एक्सेप्शंस. EXCEPTION. इसका मतलब अगर कोई भी एक्सेप्शन मैच नहीं करती है तो ये हर टाइप की एक्सेप्शन को क्या करती है? इट ट्राई टू एक्युमुलेट. समझ में आया? Yes, sir. मतलब एक तरह से समझ सकते हो, whenever you have a problem in the electricity, this is the electricity department. Whenever you have a problem in the water, this is the water department, or you can say Jal Nigam. And exception is just like a prime minister. कुछ भी प्रॉब्लम आ गई सीधा कहां पहुंच गए? मोदी जी के पास. मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है. दैट इज नॉट ए गुड सोल्यूशन. लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको रिप्लाई आता है वहां से. अगर आप अपनी प्रॉब्लम लिखोगे, दैट गोज टू द PM ऑफिस, अ प्रॉपर लेटर इज दैट, एंड दे आर गोइंग टू रिप्लाई ऑन दैट. आपको लग रहा होगा फन, मैंने ऐसा किया, आई गॉट द रिप्लाई फ्रॉम दैट. ठीक है, मैंने पानी के लिए नहीं बोला था, किसी और प्रॉब्लम से. ठीक है, सो दैट इज, बट दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन. यस और नो? आपको बाईपास नहीं करना चाहिए ना. सो Yes. दैट्स व्हाई इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू शुड गिव हियर, क्योंकि आपको अच्छा सोल्यूशन तो यही मिलेगा, पानी के डिपार्टमेंट में, अरिथमेटिक. सो फॉर एवरी टाइप ऑफ एक्सेप्शन देयर इज अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास. सो दैट इज द लॉजिक कि अपने आप यहाँ चलाता है. अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट कहां पर जाएगा? यहाँ पे. और अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा ये सब, देन आल्सो इट इज नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग. कोड तो चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? किसी भी तरह की समस्या के लिए कृपया यहाँ पधारें. गेटिंग माई पॉइंट? Yes. तो Yes. अच्छा सोल्यूशन नहीं है. हाँ, प्रोग्रामर आज के टाइम में प्रोग्रामर क्या करते हैं? अरे यार कौन इतना झंझट ले, उनको लगता है मेरी प्रोग्रामिंग बहुत बेस्ट है, मेरा तो प्रॉब्लम आएगी नहीं. सो हाँ, प्रोग्राम तो आगे बढ़ाना है क्योंकि दैट इज द चेक्ड एक्सेप्शन, वो आपको बढ़ने नहीं देगा. सो दे ट्राई टू मेक ट्राई एंड कैच, और एक्सेप्शन लगाते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख के, कुछ भी क्या, कुछ नहीं लिखते हैं तो E.printStack. इसका मतलब होता है जो एरर आ रही है उसका पूरा क्या दो, हमें विवरण दे दो, पूरा हमारा ट्रैक दे दो कहां से एरर प्रोड्यूस हुई है. So this is the thing. But from the interview perspective, you should know it. What do you mean by exception? What is try? What is try? What is try catch? What is try, multiple try? Is it okay? Yes. Chaliye. So now we are going to, we have learned that we have a try block, we have a catch block. We can use single try with multiple catch. But the best practice is that you should create a individual try and catch. मेरी advice है, कभी भी ऐसे कोड मत लिखना. मेरी advice ये होती है, ये जो multiple catch एक साथ भी होते हैं, that is also not my advice. मेरे को नहीं लगता है ये आपकी coding of line of coding बचा देता है, that is okay. But my advice is that whenever you are getting a problem, try to short at the same location. So this is the best code, है ना भाई? इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे करो, इसका अलग करो. Just try to make it separate. Yes or no? Means single try, single catch. That is the best solution, है ना? क्योंकि there is no complication, है ना? Yeah, right. आप किसी से देखो, उसका रीजन भी है. you cannot be make sure कि कोई लाइन आपने लॉजिक यहाँ पे लिखा है एंड कुछ लॉजिक आपने बाद लिखा है, मैं सबको एक साथ कैसे लिख दूं? हो सकता है उनका सीक्वेंस मैटर करता हो. यस और नो? Yes, yes, yes.
तो मैं जबरदस्ती फाइल इनपुट के नीचे इंट ए सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय क्यों लिखूं? मुझे वहां करना ही नहीं है। सो बेस्ट सोल्यूशन इज दैट जहां पे जो कोडिंग आ रही है वहां पे करो। यस और नो? Yes. ग्रेट। चलिए अब आते हैं, नाउ कम टू द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू, दैट इज कॉल्ड फाइनली ब्लॉक। What is a finally block here? Finally block क्या होता है? Whenever we are writing a code, okay? For example, I'm writing this code. So when the problem will become here, then the control will go to the catch block. Yes or no? अगर मेरी कंट्रोल फाइल में इस लाइन में लाइन नंबर 70 is not going to produce any error, any exception, my control will never go to the catch block. Yes or no? Yes. Yes. लेकिन मुझे एक सिचुएशन आती है जहां पे वो क्या करना है, वी वांट टू एग्जीक्यूट अ कोड। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोड लिखा है, लेट मी शो यू। द कोड इज दैट, ये कोड है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, कोड में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्लोज फाइल। ओके, आई एम राइटिंग अ क्लोज फाइल, ठीक है, आई एम राइटिंग दिस कोड। सो नाउ एनी हाउ प्रॉब्लम कम टू दिस लाइन और प्रॉब्लम डू नॉट कम टू दिस लाइन, I want to execute this line every time. Are you getting my point? मेरी इस लाइन में प्रॉब्लम आए या प्रॉब्लम ना आए, लेकिन ये लाइन मुझे हर कीमत पे चलानी है, दोनों केस में। सो फॉर दैट पर्पस try and catch exception has given you a block that is called finally. अभी Finally. क्वेश्चन आएंगे, मुझे पता है क्या आएंगे, तो उसका आंसर you will get the satisfactory answer. ठीक है? So I will create a finally block, and the purpose is finally block is that whatever statement you want to execute in both the situation, like the error should come or error should not come, okay, that should be written in the finally block. Finally. चलिए, तो you will see here currently my file nipun.txt exist करती है कि नहीं? Let me go and check it here. हाँ जी, exist करती है। So my control will go to the sketch block में तो नहीं जाएगा, yes or no? Yes. Yes. लेकिन कहाँ जाएगा? finally में जा रहा है। Yes. चलिए, now let me show you the another situation. निपुण do not exist, हटा दो निपुण जी को यहाँ से, निपुण की फाइल को हटा दो, सॉरी। तो so now let me run it here, तो let me run it. Control is going to the finally block, yes or no? और कैश भी जा रहा है। Yes. Yes. So now anybody want to ask any question? Otherwise I'm going to give you the question. Anyone want to ask this question? Anybody have any doubt regarding this finally? No. No. मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू में Why we are getting multiple messages? Like, why we are getting multiple. एक बार कैच डाला ना तो फाइनली डबल में से क्यों डाला? हाँ क्यों, तो मैं बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी, लेट मी टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू। क्वेश्चन ये नहीं, अगर मैंने कैच डाला है, ठीक है, तो मैंने आपसे बोला ना पहली बात, तो दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू द एरर। ये एरर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना एरर आए तो भी ये काम आपको करना था और एरर ना आए तो भी ये काम करना था। सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द एरर, दैट इज 100% श्योर। तो इसका मतलब कैच वाली बात तो सही नहीं है ना। कैच में हम कब कर रहे हैं? व्हेन एरर इज कमिंग। इज इट ओके? Yes. क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि प्रदीप अगर मुझे स्टेटमेंट रन करना ही है और मैंने ट्राई कैच लगा दिया, तो क्यों ना इस कोड को उठा के यहां लिख दो, जैसे ये रन हो रहा है इसके बगल में ये भी तो रन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन तो आएगी नहीं। यस और नो? मेरी Right. बात समझ रहे? जब एक्सेप्शन आएगी ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तक मेरा एक्सेप्शन मतलब आ गई, जो भी आ गई, मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, तो जैसे इस लाइन को यहाँ लिख दूंगा तो ये भी तो चला ही देगा इसको, 100% चलेगी। यस और नो? Yes. So here one the question is that कि यहाँ पे इसको इसलिए लिखते हैं, two things are there. जो लाइन मैंने ये बोली है that is related to this line, वो क्या है? इस लाइन से रिलेटेड है, वो क्या है? इस लाइन से रिलेटेड है, लेकिन 100% डन होना चाहिए। मतलब इस लाइन से रिलेटेड भी वो लाइन हो, स्टेटमेंट हो जो उससे रिलेट करता हो और 100% चलना हो। जैसे एग्जांपल बताता हूं, whenever you are reading this file, you have read this file, once your वर्क इज कंप्लीटेड, आपने इस फाइल को रीड करने के बाद जो भी काम, सपोज टेक द एग्जांपल, आपने यहाँ पे कुछ काम किया, कोड किया, जब आपका काम खत्म हो जाए, चाहे एरर आए फाइल में या ना आए, आपको अपनी फाइल को बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टेल मी वन थिंग। मेरी बात समझ रहे? नो? हाँ No. जी, यस। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैं ट्राई में कोड लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है, कोड लिखने जा रहा हूं। आई एम नॉट राइटिंग अ कोड, बस गिविंग द एग्जांपल। कनेक्ट डीबी, डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोड लिखा, CONNECT, कनेक्ट डीबी। इज इट ओके? Yes. अगली लाइन में लिखी फायर क्वेरी, मैंने क्वेरी फायर की। अब मुझे एक बात बताना, द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई कनेक्ट द डीबी, मेरा डीबी कनेक्ट हो गया, कनेक्शन बन गया, ओके, एंड देन आई फायर द क्वेरी। दो सिचुएशन है, माई व्हेन आई ट्राई टू फायर द क्वेरी इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, तो कंट्रोल कहां आएगा? Catch.
कैच में। तो कैच में कंट्रोल आया, ठीक है, प्रॉब्लम आई, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम तो आई, जो भी सोल्यूशन था वो मैंने कर दिया, दैट इज ओके। लेकिन सोल्यूशन होने के बाद मुझे अपने डेटाबेस के कनेक्शन को क्या करना है? बंद करना है। यस और नो? Yes. आप अपनी, ये मैं दिखाता हूं, आई हैव माय ओन डेटाबेस। तो एसक्यूएल मैंने खोला, एसक्यूएल को खोलने के बाद मैंने देखो डीबी खोल दिया है। अब आप मुझे बता रहा हूं मैंने डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, आई हैव कनेक्टेड विद द डीबी। आपको मैं कोड से बता रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे इसलिए नहीं है, आई हैव टू स्टार्ट द सर्वर, सो लेट मी स्टार्ट द सर्वर XAAMP। चलो जल्दी खोलो, जल्दी करो, स्टार्ट माय एसक्यूएल दिस वन। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। स्टार्ट हो गया, लेट मी मिनिमाइज। चलो अब इसको कनेक्ट करते हैं। आई एम एबल टू कनेक्ट, यस और नो? Yes. तो ये काम मैंने कहाँ किया? जस्ट थिंक अबाउट दैट, मैंने अपनी कोड में यहां से काम कर दिया। अब इसके बाद दो सिचुएशन, देयर आर टू सिचुएशंस। मैंने यहाँ पे कोई क्वेरी रन करी, सिलेक्ट, टेक एग्जांपल, आपने कोई क्वेरी रन करी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टफ क्वेरी। आपने क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दिस इज द डेटाबेस व्हिच आई यूज इन माय API ऑटोमेशन ट्रेनिंग्स। तो मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये क्वेरी चल गई, आपका काम हो गया, तो क्या डेटाबेस का ये बंद कर दोगे डेटाबेस? Yes. चलो मान लो, सपोज टेक द एग्जांपल, यू आर राइटिंग सम क्वेरी, इट इज गिविंग सम एरर, आपको आपने रन की, एरर आ गई, आपको समझ नहीं आ रहा है एरर क्या आ रही है, लेकिन डेटाबेस तो बंद कर दोगे ना, समझ नहीं आ रहा उसके बाद? भाई एप्लीकेशन को बंद कर दोगे ना अपना अगला काम करने के लिए? यस और नो? Yes. Yes. So same thing, try to understand here. I have written a code to connect the database. I fire a query. अगर query fire हुई, the problem will arise. And in my catch, अगर मैं catch में code लिख दूं क्या? Close the DB. क्या लिख दूं code? Close DB. मैंने database कनेक्शन क्लोज कर दिया। लेकिन जब प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब क्या मेरा कंट्रोल यहाँ पे आएगा? No. तब नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैंने कनेक्ट डेटाबेस किया, मेरी क्वेरी चल गई, लेकिन मेरा डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करने का कोड तो चलेगा नहीं, बिकॉज दैट इज रिटन इन द। Catch flow. तो मुझे ऐसी जगह चाहिए थी जहां पे दोनों कीमत पे चले, एंड दैट इज द प्लेस ऑफ फाइनली। अब मुझे बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इफ माय एक्सेप्शन विल कम दिस लाइन। ठीक है, एक्सेप्शन आई, कैच में जाएगा, लेकिन क्लोज डेटाबेस कर देगा, यस और नो? Yes. प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ सही चल गया, कैच में जाने की जरूरत नहीं थी, फाइनली में आके फिर भी क्लोज कर दिया, कर दिया। Yes. एंड दिस क्लोज वाज एक्चुअली रिलेटेड टू द कनेक्ट डीबी। अगर ये कनेक्ट डीबी नहीं होता तो क्या कभी क्लोज होता? No. So it means I hope you got my point कि why I'm not writing this line of code as a general statement, क्योंकि ये वो लाइन है जो मेरे try से relate तो करती है, लेकिन दोनों कंडीशन में it should be executed. I hope you are getting my point. Yes. तो ये फाइनली का आंसर होना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट। और ये मैं वहां के क्वेश्चन जब छांट के लाया तो उसमें देखा दे वाज ट्राइंग टू एक्सपेक्ट दिस थिंग, और वहां पे जो आंसर्स जो लोग दे रहे थे, जिन्होंने मुझे बताए थे आंसर, वो यही आंसर नहीं दे पा रहे थे कि हाउ दे आर रिलेटेड। तो आंसर क्या है? द फाइनली स्टेटमेंट शुड बी रिलेटेड विद द ट्राई वन। वो ट्राई से रिलेट करना चाहिए। अगर रिलेट नहीं करा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द ट्राई, ये रिलेटेड है ट्राई से नहीं। No. लेकिन ये अगर मैं यहां लिख दूंगा तो इसका मतलब, मुझे एक बात बताओ, कि ये कोड तो ऐसे चलेगा जैसे इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये कोड कनेक्ट डीबी करता, कैच करता, ये एक जनरल, लेकिन फाइनली का मतलब मुझे पता है कि वट एवर आई हैव रिटन इन द फाइनली डेफिनेटली दैट इज रिलेटेड टू द ट्राई। यस और Right. नो? किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपका कोड itself is telling to another person that whatever you have written in the finally definitely that is related to the try. I hope you are getting my point. Yes. Yes. ठीक है, so this is the thing. Now we have learned try, we have learned catch, we have learned finally, we have learned multiple catch also. Now I'm going to tell you one thing that is asked in the interview. We have used you can say two things. One is called throws, एक होता है throws, okay, one is called finally, इसके बारे में पूछते हैं, and one there is a keyword that is called throw, that is called throw. True. तो आई एम गिविंग यू इन रेस्पेक्ट ऑफ, यू कैन से इंटरव्यू, आप लोग उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हो। बेसिकली द पर्पस ऑफ थ्रो कीवर्ड इज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो योर एक्सेप्शन। मतलब कहीं पे एक्सेप्शन ही होता है ना, कि कहीं पे होता है, कुछ लोग ऐसे होता है ना, प्रॉब्लम नहीं आ रही है फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बंदे। सो फॉर दैट पर्पस यू नीड अ कीवर्ड। तो आपके फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, लेट मी डू वन थिंग एग्जांपल हियर। अभी मेरी कोई एक्सेप्शन यहाँ पे आ रही है, कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? कैच आ रही है। यहाँ पे मेरा मन कर रहा है यार जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करो, आई वांट टू थ्रो एक्सेप्शन। तो क्या लिखना है? THROW, क्या लिखोगे? थ्रो, Exception. थ्रो। और यहाँ के एक्सेप्शन देखो, मैंने क्या बोला? एक्सेप्शन मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, है ना। जैसे कि एक्सेप्शन जब बनती है तो क्या बनता है? उसका ऑब्जेक्ट बनता है ऑटोमेटिकली, यस और नो? Yes. तो आप जब एक्सेप्शन बना रहे हो तो आप जानबूझ के एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एंड ऑटोमेटिकली योर प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे,
देखोगे वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, अब देखो अपने आप यहाँ पे मैंने कर दिया, और अपने आप इस लाइन को लिखते ही मेरे आगे क्यों एरर आई आपको भी पता चल रहा होगा। क्यों? जब मेरे यहाँ पे थ्रो हो जाएगी तो क्या कभी ये कोड रन कर पाएगा? No. और why now you are getting a very important thing, you are going to learn it. Why I am getting the specific error on line number 29, unreachable code? कोई बताएगा क्यों? ये मैंने आपको डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर में भी। क्योंकि अगर इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस एक्सेप्शन हियर, मतलब ये 100% थ्रो करेगी, कोई इफ में तो लिखी नहीं है, हाँ चलेगी, तो क्या कभी ये कोड यहां तक कंट्रोल पहुंच पाएगा? No. कभी नहीं। इस कोड के ठीक बाद आप अपनी एक्सेप्शन को थ्रो करा रहे हो, तो ये कोड कभी पहुंच ही नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स व्हाई इफ इन योर प्रोग्राम अ कंडीशन व्हिच कैन नेवर बी यू कैन से रीच्ड, वी कॉल इट अनरीचेबल कोड। समझ में आया? So that is one thing, but you got this point. Whenever you want to throw your own exception, you can use this word, throw new this one. Is it okay? Yes. अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप बोलोगे प्रदीप इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये सब एक्सेप्शन तो हम नहीं करते। एक्चुअली इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, whenever developer is trying to make a software and they feel that they want to generate a custom exception. Custom मतलब समझो, अरिथमेटिक बनी है एक्सेप्शन। एक मेरी एक्सेप्शन, मेरी खुद की एक्सेप्शन का नाम है when the age of in the insurance domain, if the age of a person is you can say less than 18, I want to generate a condition, I want to generate a error condition. Are you getting my point? हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हो? Okay, I'm saying that in development, you have these pre-defined exceptions, arithmetic, file not found, error index out of bound. These are the pre-defined exception. If you want, you can create your own exception. आप खुद की भी बना सकते हो. That is called custom exception. तो उन exception को जब throw करना होता है, at that time we use throw keyword. समझ में आया? Yes, Pradeep. तो आपकी कस्टम, हम कस्टम एक्सेप्शन नहीं बनाते बिकॉज दैट इज नॉट रियली यूज्ड हियर। लेकिन हाँ, आपको अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट, आई विल टेल यू, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट कि एक्सेप्शन बनाने के लिए वी हैव द कांसेप्ट ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। हमारे पास थ्रोबल होते हैं, हमको इनहेरिटेंस यूज करना पड़ता है, दैट इज टू जनरेट अ कस्टम एक्सेप्शन, बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक। इंटरव्यू में व्हाट इज दे आर एक्सपेक्टिंग, इफ यू आर गोइंग टू गिव द प्रॉपर इंटरव्यू, इफ रियली दे वांट टू हायर यू, अगर वो हायर नहीं करना चाहते हैं तब तो कुछ भी पूछ लेंगे, बट इफ दे रियली दे वांट टू हायर यू, तो दे आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन throws and finally. So throw is used to throw the custom exception, throws is used to ignore the exception, okay, and finally is used to provide a block so that you can Execute that code. execute a code 100% related to your trial. I hope you are getting my point. Anybody who's not clear on that? Yes or no? Everybody is clear, say yes or no. Yes. Yes. Yes, Yes. वरना मुझे Yes. डायलॉग, आई हैव टू डायलॉग, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है ना, सो एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी। मेरे सेशन में हर कोई हैप्पी होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, ओके।